The second chapter, Cultural Heritage of India, Traditional Handicrafts and Fine Arts. You may be aware about this word handicraft. Handicraft means that are made with the hands. घर पे आपने देखा होगा नानी को या दादी को एक पीस ऑफ क्लॉथ पे कोई डिजाइन होता है तो डिजाइन पे उन लोग हाथों से उसको एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने देखा होगा. ओके, सो दैट इज whatever things that are done with hand is known as handicraft. So there is a traditional behind it, the tradition behind it, so the traditional work and fine arts. So this chapter is focusing on these two things, traditional handicraft and fine arts. Okay, so let's understand this chapter. India is a country of rich cultural heritage, and we know that it is indeed very rich. Now, here it includes materialistic and genetic heritage, two types of heritage. Again, in cultural heritage, two different types of heritage are being shown. So we'll be seeing about those things, which are those. Yeah, who is this? Hardik Patil, okay. And मम्मी की कहानियां. No problem. Until the name is not put properly, I'll not be admitting them. Okay. It includes materialistic and genetic heritage. Now we have to understand materialistic means materials that are there in the given by our forefathers. Maybe our grandfather has given to our father, and our father he will give it to us. So that is materialistic. That is, it can be land, property. ये जमीन जायदाद जो बोलते हैं ना, तो वो सब मटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं. ठीक है, हम मेरे घर पे टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये सब मटेरियलिस्टिक है. ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक उसको कहते हैं. और जेनेटिक हेरिटेज का मतलब क्या होता है? जो पेरेंट्स की कला है, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत सिंगर्स होते हैं, तो वो उनके बच्चों भी क्या होते हैं, वो लोग भी सिंगर्स बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स के अंदर वो है, तो वो जेनेटिकली उनको ट्रांसफर किया गया है, इसीलिए. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड सी. तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज जेनेटिक इनहेरिटेंस या जेनेटिक हेरिटेज? तो इसका आंसर है ये, अ चाइल्ड इनहेरिट्स physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. आ गया? समझ में आया? तो हर बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ लेते हैं. Yes, every student or every child inherits something from the father and something from the mother. तो दोनों के पेरेंट्स की किसी की भी खूबी शायद पापा की हो सकती है या मम्मी की हो सकती है, पर वो दोनों खूबियां किसके अंदर हो सकती है? वो बच्चे के अंदर आती है. ठीक है, सो दैट इज फ्रॉम बर्थ. सिंस बर्थ यू दोस दे कैन हैव इट. ठीक है, तो जेनेटिक हेरिटेंस. एंड नाउ वेर एस हाउस, लैंड, एस्टेट, प्रॉपर्टीज, ये सब हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? मेटीरियल हेरिटेज. ठीक है, दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. व्हाट? जमीन जायदाद जो कुछ है उनके पास, वो सब उनके मरने के बाद हमको ही मिलने वाला है, वो बढ़ जाता है. सो दैट इज नोन एज मटीरियलिस्टिक. और पेरेंट्स की जो खूबियां है वो हम बच्चों को जन्म से ही मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक. अंडरस्टूड? Similarly, whatever man obtains or creates with his intellectual and skill is generally
called cultural heritage. और ये हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में ये सीख लिया था ऑलरेडी. Already we have learned about this. Okay. In the same manner, tradition, custom, rituals, and special types of lifestyle adopted by our ancestors is also known as cultural heritage. In addition, other matters like education, farming, trading rules, daily festivals, entertainment, art and handicraft, belief, skills are also included in cultural heritage. ये सब कुछ उसके अंदर मिलाया हुआ है. Now moving forward, let's see what we have. Now here, uh, you can write one question. How can we say that India is a land of natural heritage? How can you say that India is a land of cultural heritage? Dev, I guess you are paying attention here. What happened, Dev? Dev, is there anything wrong? Then why are you angry? Did you write the question? How can we say that India is a land of natural heritage? So this is your answer here. India is an ancient country of the world. It has best traditions, social values, dogma. Now, what is dogma? It is set of principles or rules, dogma. Okay, customs and family system. What does India have? India is a ancient country of the world, and it has the best traditions, social values, dogmas, customs, and family customs. Okay. Now, there are references of 64 arts in our ancient literature. There are how many references? References of 64. 64 arts in our ancient literature. Now, what are they? They are handicraft, workmanship, skills, kasab, art, drawing, music, dramatic art, and dance, etc. तो यहाँ पे कितना बता है? इट हैज बीन रिटर्न 64, पर यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा ही दिया है. ठीक है. सो देर आर अ लॉट मोर. तो उसमें से कौन कौन से है जो मेन है? तो वो हैंडीक्राफ्ट हो गया, वर्कमैनशिप हो गया, दैट इज स्किल इन एनीथिंग. अब कसब, कसब का मतलब क्या होता है? पेशा या धंधा जो होता है वो. आर्ट, आर्ट अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्ट होता है. ड्राइंग का हो गया या कोई अलग स्किल हो गया, वो सब आर्ट्स के अंदर आ जाता है. यहाँ पे ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस, ये सब को बताया गया है. सो देर आर अराउंड 64. ठीक है. सो दिस इज द आंसर for how can we say that India is a land of natural and India is a land of natural heritage, क्योंकि India is having all these kinds of traditions, all these kinds of arts in India. You can find all these things here. Now, our ancient currencies were also valuable. Prosperity of India was the main attraction of the visitors to attack India. Prosperity. क्यों prosperity था main attraction? क्योंकि India was considered to be सोने की चिड़िया, golden bird, है ना? 9th में सीखा था. इसलिए सारे विजिटर्स क्या करते थे? इंडिया आते थे
और बिजनेस के नाम के लिए आते थे, पर यहाँ पे बिजनेस के नाम पे वो लोग इंडिया को लूट के चले गए। क्या रिपीट करना है? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी के कारण, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया कौन क्या था? दैट इज इंडिया वाज नोन एज सोने की चिड़िया और गोल्डन बर्ड, इसीलिए देयर वर मेनी विजिटर्स। टुडे द एजुकेशन ऑफ योगा हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, योगा को भी कंसिडर किया गया है। एंड हियर वी सेलिब्रेट 21 जून as World Yoga Day. Celebrate 21 June as World Yoga Day. Okay, finished? Next, here we are going to study about varied art and craft of India, different types of art forms. तो हम तो पहले हमको जब हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो हमको क्या दिमाग में आता है? ड्राइंग, ये सब ही आता है ना, ड्राइंग और क्राफ्ट। पर आर्ट का, आर्ट के अंदर क्या क्या आता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स दैट आर सीन इन इंडिया। आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशियंस। The beauty of the Indian cultural heritage is lying in the tradition art of its artisans. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, archaic work, diamond related artistic workmanship, and knitting have their unique identity in India. So see, these all things are the, ये सब कुछ आर्ट वर्क के अंदर आता है। पहले हमारे यहाँ पे आर्ट वर्क का मतलब हमको तो एक ही चीज पता था, ड्राइंग और क्राफ्ट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आर्ट इज वेरी वाइड। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। क्वेश्चन रिपीट करना था। तो हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ cultural heritage? How can we say that India is a land of cultural heritage? उसका आंसर मैंने ऊपर पहले टिक करवा दिया था। एक एक वर्क हम लोग एक एक करके सब सीखेंगे क्या है करके। ओके, नाउ first one is art clay work. First one is art clay work. Man and clay, this is a very important point. Okay, you can write the question, explain the ancient artwork of clay. Explain the ancient art of clay work. Explain the ancient art of clay work. Or describe clay work, or describe clay work as an ancient art. Did you write the question? लिखा? अंश आपने लिखा?
Okay, so these answers should be written in points. Okay, मैंने पहले भी आपको समझाया कि एसएस का जब भी आंसर लिखोगे सब पॉइंट्स में लिखना. So here, first point is man and clay have been closely associated since ancient time. This is your first point. Second point, the whole life of man revolves around it from the cradle to grave. क्रेडल टू ग्रेव का मतलब क्या है? जब हम लोग बच्चे जन्म लेते हैं तो दे आर लेड इन द क्रेडल. क्रेडल का हिंदी वर्ड मेरे को नहीं मालूम, बट क्रेडल में बच्चों को सुलाते हैं ना, झूला झूला बोलते हैं. तो फ्रॉम क्रेडल से लेके ग्रेव, ग्रेव यानी मरने, जब वो बच्चा मरता है, कोई बड़ा होके मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ग्रेव में जाता है. तो जन्म से लेके ग्रेव तक हम लोग किसके साथ एसोसिएटेड है? सॉइल के साथ, या हम लोग क्ले के साथ एसोसिएटेड है. नाउ हियर, before the invention of metal, clay things were used abundantly. Next point. अब इसके अंदर कौन कौन से थिंग्स है? तो टॉयज, पॉट्स, पिक्चर, अर्थन लैम्प्स, क्ले स्टव, चूल्हा, क्ले वेस were made by the potters to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. आज हमारे पास अर्थन क्लेवेस बहुत हमारे घर में बहुत कम देखने को मिलता है. पहले टॉय से लेके पॉट, पीने का पानी, मटका है ना सबके घर पे, सबके घर पे मटका तो होगा ही होगा. उसके अंदर हम लोग पीने का पानी रखते हैं. तो वो किससे बना है? क्ले से बना है. पता है? दैट इज मेड अप ऑफ क्ले. तो पहले सारी चीजें किससे बनती थी? क्ले से. इसके लिए यहाँ पे लिखा है टॉयज, इवन टॉयज वे मेड अप ऑफ क्ले. टॉयज भी क्ले के बनते थे. तो बच्चों को खेलने के लिए क्ले के टॉयज से पिक्चर सब कुछ आ गया उसके अंदर. दिया, हम लोग दिवाली में दिया लगाते हैं, ठीक है, तो वो किसका है? वो भी क्ले का है ना. तो ऐसे बहुत सारी चीजें क्ले का ही बनता था. आज हम लोग किचन में जाओ तो आपको क्ले के आइटम्स आपको बहुत कम दिखाई देगी. एक मटका ही आपको दिखाई देगा. ठीक है, हार्डली किसी के घर के अंदर हमको ऐसे देखने को मिलता है. और स्टोर करने के लिए, पॉटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, ग्रेन स्टोर करने के लिए भी बड़े बड़े पॉट्स आते थे जिसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर. आज हम लोग बड़ा स्टील का डब्बा होता है उसके अंदर रखते हैं, है ना. तो पहले इट वॉज मेड अप ऑफ, इट यूज टू बी पॉट्स, लार्ज पॉट्स. मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क, ये आपको पता होगा. कृष्णा, ही वॉज अ लवर ऑफ कर्ड. तो उसकी माँ क्या करती थी? कृष्णा की माँ क्या करती थी? कर्ड, वो कृष्ण भगवान का वो कर्ड मटका वो ऊपर बांध के रखते थे, तो भी वो चोरी करता था, है ना. तो सी हाउ पीपल यूज टू स्टोर ड्यूरिंग दोस पीरियड. तब सब कुछ मिट्टी का होता था. मैक्सिमम किचन वेयर मेड अप ऑफ क्ले. ठीक है. द वॉल्स ऑफ हाउसेस, कूबास दैट इज हट्स वे प्लास्टर्ड विद द पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले. पुराने जो घर बनते थे, आज भी आप अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाओगे या ग्रामीण जो गांवों में जाओगे तो वहां पे आपको दीवार किसकी बनाई है? क्ले की. उस पे प्लास्टर क्या होता है? काउडंग और क्ले को दोनों को मिक्स करके प्लास्टर करते हैं. We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappan culture of the ancient time. ये आप पॉइंट डाल सकते हो. नेक्स्ट, potter's wheel is considered to be the best device for clay work in the ancient India. Why potter's wheel? Have you seen a potter making pots out of a wheel?
एक चरखा ऐसा गोल घूमता है, व्हील घूमता है, और वो सिर्फ क्ले को ऊपर रखता है और वो हाथ अपने क्ले को देता है, तो डिफरेंट शेप्स, पॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं. At present time also we can see garba, that is picture having holes container earthen lamp inside in नवरात्रि. नवरात्रि के टाइम पे जो पॉट्स बनते हैं वो पिक्चर यानी पॉट, उसके अंदर अर्थन लैम्प रखा जाता है. ठीक है, और वो क्या है, होल्स वाले है. तो वो सिर पे, कुछ लोग सिर पे रख के गरबा करते हैं. रेड कलर यूटेंसिल्स यानी रेड कलर का जो सॉइल होता है उसमें से जो यूटेंसिल्स बनते हैं वो क्ले के, और उसको हीट किया जाता है. जब वो हीट कर देते तो वो रेडिश हो जाता है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, यानी जल्दी टूटे ना. सिर्फ अगर हम लोग क्ले का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद जो सूख जाएगा तो वो टूट जाता है. तो लोग क्या करते हैं, वो क्ले को बाद में हीट करते, गरम करते, तो गरम करते तो वो क्या हो जाता है, टूटता नहीं है जल्दी. जैसे हमारे घर पे जो मटका है वो रेड कलर का है, उसको कोई भी कलर दे सकते हैं, पर वो गरम करते तो वो जल्दी टूटता नहीं है. Next, India was famous for producing the baked utensils of baked clay as well as unbaked clay. Baked utensils of baked clay as well as unbaked clay. Terracotta. By this is known by seeing the remains of old and handmade clay utensils from the Nagarjuna Kunda in the south and Lancha in Mehsana district. ओके, तो ये क्ले वर्क का आपका सारा पॉइंट्स है, तो आप ये लिख दोगे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write down the second question. Give introduction of weaving and embroidery as an art of India. Give introduction of weaving and embroidery as an art of India. Art of weaving. ओके, इसका आंसर है द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स स्वैब एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग. स्पिनिंग का मतलब यहाँ पे दिया है, क्या है कि मेकिंग लॉन्ग थ्रेड यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन बॉल्स, कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर. रिपीट द क्वेश्चन. Give introduction of weaving and embroidery as an art of India.
We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement, which has created a new history. गांधी जी ने आपको हमें सबको पता है चरखा स्पिनिंग व्हील है ना, सबको याद है। तो वो स्पिनिंग व्हील उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा हर पर्सन के पास कपड़ा होना चाहिए कोई। तो उससे गांधी जी ने जो स्टार्ट किया वो किस लिए था, ताकि स्वदेशी थिंग्स, हम लोग को अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। नाइन्थ में हमें सीखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सब कुछ लूट लिया था, है ना। सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट द फ्रीडम मूवमेंट। और उसी चलते हमने नाइन्थ में सीखा था कि हमने क्या कर दिया था कि जो फॉरेन गुड्स थे उन सबको बैन कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील यानी जो चरखा से जो शुरुआत की थी, तो वो हमें सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए था। ओके, नाउ व्हाट इज हैंड वीविंग? इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल। It is well known that the whole piece of cloth of a particular size, taka, or fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring. टाका क्या होता है पता है? 20 मीटर या 20 मीटर का हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ये अगर टेक्सटाइल में कोई आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हो तो वहां पे जाओगे तो आपको वो बोलते कि एक टाका निकाल के लेके आओ, तो बहुत बड़ा होता है। और वो टाका एक क्या है, टाका किसका? ऑफ फाइन मुस्लिन, वो ढाका। ढाका, वेयर इज ढाका? इट इज इन बांग्लादेश, इट इज द कैपिटल। तो बांग्लादेश का जो यानी ये जगह का मुस्लिम ऑफ ढाका जो था, ढाका तब इंडिया का ही एक पार्ट था। सो एट दैट टाइम दैट 20 मीटर एक छोटे से रिंग में से आराम से पास हो सकता था। इट कैन इजिली पास थ्रू अ रिंग। तो अब सोचो इतना बड़ा कपड़ा वो कैसे इतने छोटे रिंग में से जा सकता है। तो जो पीस ऑफ क्लॉथ था वो उतना अच्छा था और वो उसी तरह उसका यूटिलाइज किया जाता था। एंड कुड बी एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स, और उसको एक मैच बॉक्स के अंदर भी रख सकते थे। इतना बड़ा कपड़ा एक मैच बॉक्स के अंदर कैसे आएगा? पर यहाँ पे आया है। उन्होंने उतना, वो उतना मुलायम होता है, उतना सॉफ्ट होता था कि वो आराम से एक मैच बॉक्स के अंदर आ सकता है। समझ में आया? सो इंडिया ऐसे काम कर सकते थे। मोर ओवर कारपेट, ये आपको पता है, ये सब हम सबके घर पे यूजुअली कारपेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, knitting work on attires and artistry etc occupied a prominent place। तो ये कारपेट्स पहले बड़े बड़े घरों में देखने को मिलता था, पर वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कारपेट अब अलग अलग रीजन्स में भी बनते थे। तो उसमें निटिंग यानी हाथों से ये करना, सिलाई करना। ठीक है, अटायर्स, डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स के लिए आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक वर्क में यानी अलग डिजाइन्स, अलग तरीके से, ये सब आज एक प्रोमिनेंट प्लेस है। अमंग्स देम पटोला ऑफ पाटन, पाटन गुजरात में। ठीक है, पटोला ऑफ पाटन, पाटन गुजरात में। कांजीवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु, कांजीवरम। एंड बनारसी साड़ीज, बनारसी, बनारस दैट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां की साड़ी। बांधनी ऑफ राजस्थान, बांधनी साड़ी है, कपड़ा है। और ये कपड़ा आपको कहाँ से देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये सब क्या है आज के तारीख में भी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया का। यानी अगर फॉरेनर है या गुजरात के ही लोग हैं
तो उनको अगर बोलोगे कि कांजीवरम साड़ीज, यानी वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। या हम लोग बोलते हैं साउथ में अगर जाओगे और बोलोगे बांधनी, तो वो बांधनी वर्ड ही काफी है। अंडरस्टूड? सो those unique, that is the uniqueness of India, the cloth that has been made. तो वो not only in India, it has been known throughout the world. The golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. कौन से पीरियड में गुजरात ने प्रोग्रेस किया? सोलंकी एरा में। और उस टाइम पे जो राजा थे उनका नाम क्या था? सिद्धराज जयसिंह। उन्होंने क्या किया? मेनी आर्टिशियंस और वीवर्स केम एंड सेटल्ड इन पाटन। जब ये राजा थे तो बहुत सारे आर्टिशियंस जगह जगह से, वीवर्स जो थे वो लोग सब आके पाटन में सेटल हो गए। The Patola of Patan became world famous due to their skills. अब क्या था इसके अंदर स्पेशलिटी? ये एक नंबर वन पॉइंट, जब ये सोलंकी गोल्डन पीरियड सोलंकी एरा, क्या आंसर आएगा? तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है, ये पैराग्राफ। ओके, नाउ हियर व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर? This art of Patan is more than 850 years old. Only a handful of artisans have the skill for such complicated and time consuming art. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क सबकी बस की बात नहीं है। इट इज नॉट एवरीवन्स जॉब। ओके, इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंट। द सिल्कवेयर, उसका दूसरा नाम क्या है? बेवाडिक्ट, प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। जो पाटन में बनाया जाता है, जो सिल्क का कपड़ा जो बनाया जाता है, उसको क्या नाम दिया है? पटोला ऑफ पाटन। इक्ट, इक्ट का मतलब क्या है? वीविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ी is designed in such a manner that it can be worn on either side. यानी 850 years पहले जो साड़ी बनती थी, वो साड़ी कैसा था? दोनों तरफ पहन सकते हो। हम लोग जो टी शर्ट पहनते हैं दोनों तरफ पहन सकते हैं? नहीं। पर आपने कोई जैकेट देखा होगा जो दोनों तरफ पहन सकते हैं। कुछ जैकेट ऐसे होते हैं वेयर यू कैन वेयर इट ऑन ईदर साइड, अंदर बाहर भी पहन सकते हो, बाहर से अंदर भी पहन सकते हो। जैकेट्स की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे साड़ी, आपने यू मे हैव नोटिस द साड़ीज योर मदर्स आर वेयरिंग, जिस तरफ प्रिंट होगा उस तरफ ही पहन सकते हैं ना, उसके उल्टा साइड पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। पर यहाँ पे जो साड़ी थी, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ साड़ी थी, दैट कुड बी वोन ऑन ईदर साइड, यानी दोनों तरफ आप पहन सकते हो। समझ में आया? और ये कब? 850 इयर्स पहले की बात है, तभी से ये एक डेवलपमेंट है। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट। ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट का मतलब कलर्स कभी जाएगा नहीं। आज हम लोग एक टी शर्ट लेते हैं तो पहले दिन जो कलर होगा, एक धुलाई के बाद उसका थोड़ा बहुत कलर निकल जाएगा, राइट? कॉटन का टी शर्ट ले लो, कुछ भी ले लोगे तो उसका कलर थोड़ा चला जाएगा। फिर थोड़े बार बार पहनेंगे, बार बार धोएंगे तो उसका कलर ऑलमोस्ट धीरे धीरे फेड हो जाएगा, राइट? पर हियर दे से दैट इट डस नॉट गेट फेड। ये जो साड़ी थी उसका जो कलर है वो ओरिजिनल कलर है एंड इट विल नेवर गेट फेड। और यहाँ पे एक रेफरेंस भी है, उसके बारे में एक बात भी कहा है, पड़ी पटोले भात फटेपन फाड़े नहीं, फीडे नहीं। दैट इज
द डिजाइन जो बना है, जो कलर है, वो कभी जाएगा नहीं। भले आपका कपड़ा फट जाए, कपड़ा भले फट जाएगा पर कलर नहीं जाएगा, डिजाइन नहीं जाएगा। ओके, ये गोल्डन पीरियड का, दिस इज द आंसर फॉर द गोल्डन पीरियड। ओके, इफ देर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड डिस्क्राइब द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, तो आपको ये पूरा लिखना है। फिनिश। The next one, art of embroidery. Write down, write a short note on embroidery. Write a short note on embroidery. द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी सबको मालूम है क्या है ना? तो ये उसके बारे में बताया गया है। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द आइडल्स एंड द स्टैचूज विच वे फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द हरप्पन एंड मोहनजोदारो। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक आइडल देखा था, वो आइडल के ऊपर एक शॉल था, ठीक है, एक कपड़ा था, और वो कपड़े पे एक डिजाइन बना था, राइट? सो दैट इज एम्ब्रॉयडरी वर्क। ओके, आज एम्ब्रॉयडरी वर्क हम लोग, बहुत सारे लोग अपने ड्रेसेस पे करवाते हैं, या रेडीमेड आता है कि एक कपड़ा होता है उस पे एक रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है, ठीक है? तो ये सोचो कब का एम्ब्रॉयडरी वर्क कब आपको देखने को मिलता है? सिंस द हरप्पन एंड मोहनजोदारो जब से फॉर्म हुआ था तब से आपको देखने को मिला है। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब एक्सकावेशन किया या खोदकाम किया, तब वहां से हमें जो आइडल्स मिला उस पे से, और स्टैचूज मिला उस पे, जो कपड़े थे उस पे से हमें पता चला कि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क तब से है करके। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, देखो क्लोथ्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन इज वेरी फेमस। तीनों पहनते थे। अभी आजकल हम लोग देखते खाली वुमेन्स ही पहनते, ऐसा नहीं है। मेन और चिल्ड्रन दे कैन ऑल्सो वेयर, और उनके भी कपड़े में क्या था? एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले है। द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मेन, चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन्स एट द टाइम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो कौन कौन से जगहों पे आपको देखने को मिलता है? सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ। Similarly, Kashmiri work of Kashmir is also well known. Next, apart from embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jodhpur, Bhuj and Mandvi of Gujarat are very popular. The traditional style of Bandhani, with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dice and picture, is very popular today. आज भी अगर आप कोई भी एक बांधनी लोगे ना, बांधनी का कपड़ा, तो उसपे आपने देखा होगा, बांधनी का जो कपड़ा होता है उसपे एटलीस्ट एक डाइस का इमेज होता है। यहाँ पे लस्टर का मतलब कुछ में चमक होता है, ठीक है? उसपे एलिफेंट का, पपेट्स का, डाइस का, पिक्चर का, ये सब आपको डिजाइन्स देखने को मिलता है बांधनी के कपड़े में। आज भी आप दुकान में जाओ, उनको बोलो मेरे को एक बांधनी की साड़ी लेनी है या कपड़ा लेना है, तो उसके अंदर आपको ये डिजाइन्स आपको देखने को आज भी मिलेगा।
cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra in the regions of Gujarat. कॉटेज इंडस्ट्री पे किसने कब्जा कर लिया? वुमेन्स ने. विच वुमेन्स? वुमेन्स ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र. The tradition artwork of embroidery, torans, chakda, pillow cover, bed sheets, sak, tolia, clothes like kedia are is well known even today. ये सारे चीज पे एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको देखने को मिलेगा. एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स with different designs. Embroidery work of Jat community of Bani area of Kutch is unique in itself. Next question लिखो. Leather work is a very oldest work of India. Leather work is a very oldest work of India. लिखा. तो यहाँ पे डिस्क्राइब लेदर इंडस्ट्री. दिस इज द क्वेश्चन. डिस्क्राइब लेदर इंडस्ट्री. लिख दिया क्वेश्चन. डिड यू फिनिश राइटिंग? ओके. नाउ हमने पहले एक पॉइंट लिखा था. लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्डेस्ट वर्क ऑफ इंडिया. ओल्डेस्ट वर्क जो लिखा है ओल्डेस्ट आर्ट वर्क, उसमें एक वर्ड ऐड करना है आर्ट वर्क. ओल्डेस्ट आर्ट वर्क ऑफ इंडिया. ठीक है. ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरह हम लोग लिख सकते हैं ये आंसर के लिए. डिस्क्राइब लेदर इंडस्ट्री. तो यहाँ पे ये वाला हम लोग का फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है और क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं आप लोग को कि लेदर वर्क इज द वेरी ओल्ड आर्ट वर्क ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद डिस्क्राइब या एक्सप्लेन ऐसा भी डाल सकते हैं. ठीक है. तो अगर सिर्फ इतना ही दिया है डिस्क्राइब लेदर इंडस्ट्री, तो ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट इसको बना सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट करके हम लोग लिख देंगे. नेक्स्ट लिखो. स्किन ऑफ डेड एनिमल्स was used for various purposes in ancient India. After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner. एक एनिमल मरने के बाद उसका जो स्किन होता है उसको बहुत ही ट्रेडिशनल वे में उसको वो स्किन को वो एनिमल में से उसको अलग किया जाता है और वो उसको उसमें से क्या बनता है? लेदर बनता है. ठीक है. जो स्किन होता है एनिमल का स्किन होता है उसमें से लेदर बनता है. कुछ लोग क्या करते हैं एनिमल्स. यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? स्किन ऑफ डेड एनिमल्स.